جہاز کا ایک بہت بڑا حصہ غلاموں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے بھی ان غلاموں میں شامل کر لیا گیا اور میرے جسم پر سے ریشم کے جال کو کھول کر مجھے لوہے کی مضبوط زنجیر پہنا دی گئی۔ میں ان غلاموں کی حالت زار کیا بتاؤں پروفیسر، تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ مویشیوں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ ان غلاموں کی تعداد کئی سو کے لگ بھگ تھی۔ ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی اور بچے بھی۔ سارے مرد اور ساری عورتیں جوان تھیں۔ بوڑھے غلاموں کا اس زمانے میں کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ بوڑھے غلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ محنت اور کام کرنے کی قابل نہیں ہوتا تھا۔ غلاموں کی اکثریت بوڑھا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی تھی، اور اگر کوئی اتنا ڈھیٹ ہوتا تھا کہ ساری سختیاں جھیلنے اور غیر انسانی حالات میں زندگی گزارنے کے بارے میں اپنے آپ کو قائم رکھ پاتا تو بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو جاتا تھا، تو کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا اور اسے مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا جاتا۔ اکثر آقا تو اپنے بوڑھے غلاموں کو خود ہی ہلاک کر دیتے تھے۔ یہی حال بیمار غلاموں کا ہوتا تھا۔ کسی غلام کا بیمار ہو جانا اس کے لیے موت کا سبب بنتا تھا، کیونکہ بیماری کے بڑھنے کی صورت میں مالک خود ہی اسے ختم کروا دیتے تھے۔ بیمار غلام کے لیے علاج اور تیمارداری کے لیے نہ کسی کے پاس وقت تھا نہ پیسہ۔ جہاز کے نیچے ایک بڑا تہہ خانہ بنا ہوا تھا، بہت بڑا، اور اس میں غلاموں کو جانوروں کی طرح بھر دیا گیا تھا۔ مجھے جب یہاں زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا تو سخت تعفن کی وجہ سے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میرے چاروں طرف گندگی اور غلاظت کے ڈھیر تھے، اور برہنہ فاقہ زدہ پاپا زنجیر مردوں اور عورتوں کا ہجوم، جس میں بہت سے بچے بھی شامل تھے۔ ان لوگوں کے جسموں پر سیاہ میل کی تہیں چڑھی ہوئی تھیں اور سخت بدبو اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے ان کو کب سے نہانے کا موقع حاصل نہیں ہوا تھا۔ یہ سارے کے سارے لوگ جہاز کے سخت لکڑی کے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں کے نیچے کوئی بستر نہیں تھا۔ ان کے بال اور ناخن بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔ میں اس ہولناک منظر کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور میرے دل میں بردہ فروشوں کے خلاف شدید نفرت کی لہر توڑ گئی۔ میری آمد پر تمام غلاموں کی توجہ میری جانب مبذول ہو گئی۔ وہ مجھے حیرت کے ساتھ دیکھنے لگے۔ میرے جسم کی خوبصورتی اور میری انوکھی رنگت انہیں بہت متاثر کر رہی تھی۔ میں نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک موجود غلاموں پر نظریں دوڑائیں۔ ان میں مجھے مختلف قوموں اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے مرد اور عورتیں نظر آئے۔ ان میں سیاہ فام حبشی بھی شامل تھے اور سفید فام یورپی بھی۔ کئی ایک چپٹی ناک اور پیلی رنگت والے منگول نسل کے لوگ بھی تھے، اور گندمی رنگت والے سانولے سلونے ہندوستانی بھی۔ نہ جانے کہاں کہاں سے انہیں پکڑ کر یہاں لایا گیا تھا۔ قسمت ان بیچاروں کو نہ جانے دنیا کے کن کن گوشوں سے یہاں کھینچ لائی تھی۔ جو مسلح سپاہی مجھے لے کر تہہ خانے میں آئے تھے، انہوں نے ایک دھکے کے ساتھ مجھے ان لوگوں کی طرف بھیج دیا۔ باقی سارے غلاموں کی طرح میرے ہاتھ پاؤں بھی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ میں اچانک جھٹکے سے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔ جس جگہ میں گرا وہاں ایک نوجوان سیاہ فام عورت بیٹھی ہوئی تھی، جس کی آنکھوں میں ساری دنیا کی ویرانیاں سمٹ آئی تھی۔ اس عورت نے بڑی اپنائیت کے انداز میں مجھے اپنے ہاتھوں سے سہارا دیا۔ سپاہی ہنسنے لگے۔ ان کی اس بےہودگی پر میرا خون کھول اٹھا۔ میں چاہتا تو انہیں مکھی مچھر کی طرح مسل کر پھینک دیتا، لیکن اس وقت مجھے مصلحت آمیز خاموشی سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ میں چپ چاپ اس مہربان عورت کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے اپنے سر جھکا لیا، گویا میں بہت دکھی اور مظلوم۔ سارے غلام خوفزدہ بھیڑ بکریوں کی طرح سپاہیوں کو دیکھ رہے تھے، جن کے ہاتھوں میں لمبے لمبے چابک لہرا رہے تھے۔ سپاہی مجھے تہہ خانے میں پھینک کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بہت سے غلام اپنی جگہوں سے چل کر میرے پاس آ گئے اور مجھ سے مختلف قسم کے سوالات پوچھنے لگے۔ یہ لوگ الگ الگ زبانیں بول رہے تھے، لیکن میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ میں ان سب کی زبانیں بخوبی سمجھتا تھا۔ میں نے ان کے سوالات کی بوچھاڑ کے جواب میں صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا کہ میں بھی ان کی طرح ان بردہ فروشوں کے چنگل میں پھنسا ہوا ہوں، لیکن مجھے اپنی آزادی سے محبت ہے۔ میں نے دیکھا پروفیسر کے آزادی کے نام پر ان کی آنکھوں میں ایک غمناک چمک پیدا ہوئی جو فوراً ہی معدوم ہوگی۔ بھلا آزادی سے کون محبت نہیں کرتا؟ میں نے دیکھا پروفیسر کے ان میں سے ہر ایک کی برہنہ پشت پر کوڑوں کی ضربوں کے لمبے لمبے نشانات موجود تھے۔ ان میں سے بعض نشانات تو اس قدر تازہ تھے کہ ان میں سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ معلوم ایسے ہی ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو بڑی پابندی کے ساتھ کوڑے مارے جاتے تھے۔ میں اس دردناک منظر سے بہت متاثر ہوا اور میں نے طے کر لیا کہ ان بردہ فروشوں کو ایسی سزا دوں گا کو ہمیشہ اسے یاد رکھیں گے۔ جو سیاہ فام عورت میرے قریب بیٹھی تھی، اس نے اپنا نام کاباسا بتایا۔ اس کی زبانیں مجھے معلوم ہوا کہ ان غلاموں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو پہلے سے غلام ہیں اور انہیں عرفاس نے مختلف مقامات سے خریدا ہے۔
तहम अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जिन्हें मेरी तरह जबरदस्ती पकड़कर बंदी बना लिया गया था। उस औरत की जुबानी मुझे मालूम हुआ कि उसने सिपाहियों से सुना है कि इन्हें सिर्फ अरफाज की वापसी का इंतजार था। उसकी वापसी के बाद फौरन कूच कर जाएंगे। इसका मतलब यह था कि शायद कुछ रोज में जहाज यहाँ से रवाना होने वाला था और मुझे इससे अपना काम लेना था। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ से रवाना होने के बाद ये जहाज की अगली मंजिल कौन सी होगी और वहां तक पहुंचने में कितना अरसा दरकार होगा। इतने अरसे तक जबरदस्ती गुलामी की जिंदगी गुजारने के लिए मैं तैयार नहीं था। वह औरत मुझे पसंदीदगी की नजरों से देख रही थी और उसने मेरे बारे में बहुत से सवालात किए, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि बर्दा फरोशों ने मुझे अजबेला के करीब से गिरफ्तार किया है और अजबेला की फौज का एक सिपाही हूँ। हाथों में कोड़े लिए पहरेदार बराबर हमारी निगहदाश्त कर रहे थे और हस्बे मर्जी जिस गुलाम को चाहते उसकी पीठ पर कोड़े बरसाना शुरू कर देते। उनके लिए किसी गुलाम की कोई खास वजह जरूरी नहीं थी। मैं खामोशी से यह मंजर देखता रहा। शुक्र है कि इस दौरान किसी पहरेदार ने मेरी पीठ को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की। दिन फिर गुजर गया और शाम हो गई। तहखाने में फैली हुई नीम तारीकी में बदलने लगी। दिन भर गुलामों को कुछ खाने को नहीं दिया गया था। कवासा ने मुझे बताया कि इन लोगों को 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना दिया जाता है, शाम के वक्त, और वो भी इतना कम होता है कि बमुश्किल किसी बच्चे का पेट भर सकता है। उसने मुझे बताया कि वो लोग मुसलसल नीम फाका खुशी का शिकार हैं। मैंने दिल ही दिल में सारा मंसूबा तरतीब दे लिया था। इस वक्त तक कावासा के अलावा मेरे और किसी से ज्यादा गुफ्तगू नहीं हुई थी और जाहिर है कि मैं इसे अपना मंसूबा नहीं बता सकता था, क्योंकि कोई भी इंसान उसे महज पागलपन ही करार देता। रात गहरी हुई थी और अंधेरा बढ़ता गया। तहखाने में इस वक्त सिर्फ 2 पहरेदार मौजूद थे। जाहिर है कि जंजीरों से जकड़े हुए गुलामों की जानिब से किसी किस्म की बगावत का खतरा न था, इसलिए 2 पहरेदार भी जरूरत से ज्यादा ही थे। मैं कुछ देर तक और इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि ऊपर से आने वाली आवाजें आहिस्ता आहिस्ता करके रुक गईं और चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। पहरेदारों ने तहखाने में एक शम्मा रोशन कर दी थी, जिसकी नीम मुर्दार रोशनी में हर चीज धुंधली और पीली नजर आ रही थी। लेकिन तहखाने के वो गोशे जो शम्मा से दूर थे तकरीबन मुकम्मल तारीकी में डूबे हुए थे। जरा देर बाद दोनों पहरेदार भी खराटे लेने लगे। इन्हें इत्मीनान था कि कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। मैंने एक नजर गुलामों के जमे गफीर पर डाली। ज्यादातर लोग फर्श पर लेट कर सो गए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो जाग रहे थे और इन जागने वालों में कावासा भी शामिल थी, जो मेरे करीब ही आंखें खोले हुए लेटी थी। कावासा, मैंने आहिस्ता से कहा, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? इससे फर्क भी क्या पड़ता है? कावासा दुख भर लहजे में बोली, मेरे लिए जागना या सोना सब बराबर है, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक के लिए जब तक कि हम इस जहाज पर मौजूद हैं। इसके बाद देखो हमारी किस्मत, हमारी तकदीरें हमें कहाँ ले जाएं। हमारी तकदीरों का यह फैसला है कि आज की रात हमारी गुलामी की आखिरी रात है। मैंने सर्द लहजे में कहा और आहिस्ता से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरे जिस्म से बनी हुई जंजीरें जोर से बज उठी, लेकिन ये कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं थी जो पहरेदारों की नींद खराब होती। मेरे इन अल्फाज ने कावासा को एकदम हैरान कर दिया और मेरे इस तरह उठ जाने से वो भी घबरा कर उठ खड़ी हुई। तो तुम क्या करने जा रहे हो? तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। उसे घबराए हुए लहजे में सरगोशी की। मेरे नाम की फिक्र मत करो, मैंने भी उसी लहजे में जवाब दिया और खामोशी से देखती रहो कि मैं क्या करता हूँ। इसके साथ ही मैंने अपने जिस्म को आहिस्ता से झटका दिया ताकि जोरदार आवाज पैदा ना हो, लेकिन इतना ही झटका काफी था और आईने जंजीरें मोम के टुकड़ों की तरह कट कर मेरे जिस्म से जुदा हो गई। तुम हैरत अंगेज हो। कावासा के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। तुम यकीनन कोई जादूगर हो। मैंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कई गुलामों ने जो हमारे करीब थे या जाग रहे थे हमारी खुसर फुसर सुन ली और वह हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए। मुझे आजाद देखकर उनकी हैरत की इंतहा न रही। मैंने इन्हें खामोश रहने का इशारा किया और 2 पहरेदारों की तरफ बढ़ने लगा। पर्दाफरोश पहरेदारों की ये नींद उनकी जिंदगी की आखिरी नींद साबित हुई और मेरे हाथों की एक मामूली जुम्बुश ने इन्हें कैदे हयात से निजात दिला दी। इनके मुर्दा जिस्म तहखाने के सर्द फर्श पर लुढ़क गए। इसके बाद पहला काम ये मैंने किया कि तहखाने के भारी भरकम दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। अब बहुत से लोग उठकर बैठ गए थे और उनके मुंह से हैरत भरी आवाजें निकल रही थी। मैं सबसे पहले कावासा के करीब आया और मैंने एक ही झटके में उसकी जंजीरें तोड़ दी। इस फाका खुशी के आलम में भी उसका जिस्म बड़ा गुदाज था और जब मेरे हाथ उसका नीम बरहना बदन से मस हुए तो मेरे जगह पैर में बिजली सी तोड़ गई। कावासा आजाद होकर खुशी के मारे नाचने लगी। कोई फायदा नहीं, इससे कोई फायदा नहीं। चिपटी नाक वाले जर्द रंगत वाले एक पस्ता कद गुलाम ने तासुब भर लहजे में कहा, तुमने पहरेदारों को हलाक करके दरअसल हम सबको हलाक कर दिया है।
सुबह होते ही वो हम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ख्वाह तुम अपने अमल के जरिए हम सब की जंजीरें ही क्यों ना खोल दो। ऐसा नहीं होगा मेरा दोस्त, मैंने उसकी जंजीरें तोड़ते हुए कहा। अपने हौसले बुलंद रखो, हम इन जालिमों को निस्तो नाबूद कर देंगे। वह हैरत से अपने आजाद जिस्म को देखने लगा। मैंने एक एक करके सारे गुलाम मर्दों और औरतों को जंजीरों से आजाद कर दिया। इनमें से बेशतर की निगाहों में बेयकीनी की कैफियत थी। मैं इनकी सोच का अंदाजा इनकी आंखों से लगा सकता था। इनमें से कुछ मुझे गैर मामूली तौर पर बहादुर समझ रहे थे, कुछ के ख्याल में मैं जादूगर था और कुछ मुझे बहरूपिया समझ रहे थे। तुमने ये सब कुछ कैसे कर लिया? उनमें से हर एक की जुबान पर यही सवाल था। मैंने बरसों लोहे की जंजीरें तोड़ने की मशक की और मेरे बाजू में इतनी ताकत पैदा हो गई है कि मैं मोटी सी मोटी जंजीर को भी तोड़ सकता हूँ। मैंने इन्हें मुतमईन करने के लिए कहा, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। तरह तरह की बुड़बुड़ाहटें मेरे कानों में पहुंच रही थीं। बड़े बड़े सुरमा लोहे की जंजीरें नहीं तोड़ सकते, तुमने कैसे तोड़ दी? ये वक्त इस बहस में उलझने का नहीं। मैंने बात को खत्म करने की गर्ज से कहा, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें जहाज पर मौजूद सिपाहियों और पैरदारों से मुकाबला करना है। अपनी आजादी के लिए कुछ न कुछ कुर्बानियां तुम्हें जरूर देनी होगी। तुम सब मुकाबले के लिए तैयार हो, लेकिन हमारे पास कोई हथियार नहीं है। एक लंबे तिरंगे सफेद फार्म ने कहा। वो अपने चेहरे के नकूश के एतबार से रोमन मालूम होता था। इधर देखो, मैं लोहे की जंजीरों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हैं तुम्हारे हथियार जो भी कुछ देर पहले तक तुम्हारे जिस्म को असीर किए हुए थे। हर शख्स अपने जिस्म से अलग होने वाली जंजीरों के लंबे लंबे टुकड़े उठा ले और लड़ाई के दौरान इन्हें तेजी से घुमा घुमा कर दुश्मन को मारे। इसके बाद मैंने जंजीरों का एक लंबा टुकड़ा उठाकर उनके सामने इस चीज का अमली मुजाहरा किया। फौरन ये सैकड़ों गुलाम बड़े और उन्होंने जंजीरों के लंबे लंबे टुकड़े उठा लिए और रिहर्सल शुरू होगी। अभी रात खत्म होने में काफी देर थी। मैंने तमाम लोगों को मशवरा दिया कि वो अपनी तवानाइयों को जाया न करें और आराम से सो जाएं, ताकि सुबह हमले के वक्त वो ताज़ा दम हो। लोगों ने मेरी इस बात से इत्तिफाक किया और थोड़ी देर में सब सो गए। अभी सुबह होने में काफी देर थी कि तहखाने में जिंदगी के आसार नमूदार होने लगे। मर्द और औरतें बेदार हो गए और उन्होंने वक्त से बहुत पहले ही अपने हाथों में लोहे की मजबूत जंजीरों के टुकड़े संभाल लिए। मेरी हदायत पर दो नौजवानों ने पहरेदारों की लाशों को घसीट कर दूर एक कोने में डाल दिया, ताकि दरवाजे में से आने वालों की नजर सबसे पहले इन लाशों पर न पड़े। इसके बाद मैंने सारे लोगों को पीछे हटकर खड़ा होने का कह दिया। मैंने भारी दरवाजे की कुंडी अंदर से खोल दी, लेकिन उसे बंद रहने दिया। मैं खुद दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। किसी को तहखाने में आने की और गुलामों की कबरगिरी करने की जल्दी नहीं थी। अलबत्ता चूंकि पहरेदारों की ड्यूटी बदलने का वक्त आ गया था, इसलिए दरवाजा एक भारी चिचराहट के साथ खुला और दो नए पहरेदार हर लिहाज से ताजा दम नजर आते थे अंदर दाखिल हो गए। मेरे पहले मुक्के ने एक का भेजा पाश पाश कर दिया और उसके हल्क से कोई आवाज भी ना निकल सकी। अलबत्ता दूसरा होशियार हो गया था, इसलिए वो मरने से पहले एक बार जोर से चीखा। उसकी चीख बड़ी भयानक थी। उसके चंद ही लम्हों बाद ऊपर भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और बैक वक्त कई पहरेदार अंदर दाखिल हो गए, जो दरवाजे की दहलीज से चंद कदम से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सके। मौत ने जो मेरी सूरत में उनके सामने खड़ी थी, उनका रास्ता रोक लिया और फिर एक हंगामा मच गया। जबरदस्त चीखों पुकार का बाजार गर्म हो गया। ऊपर से सिपाहियों और पहरेदारों की एक भारी मुसल्लह तादाद दंदनाती हुई अंदर दाखिल हो गई। मैंने गुलामों को होशियार होकर हमला करने की तलकीन की और खुद लंबे चौड़े दरवाजे के करीब खड़ा हो गया। मैं अगर चाहता तो इन सब से तनहा भी निमट सकता था और इनमें से कोई एक शख्स भी जिंदा न बचकर वापस जाता, लेकिन मैं गुलामों को ये बावर करवाना चाहता था कि ये जंग उन्होंने मुश्तरका जिद्दोजहद के जरिए जीती है, ताकि एक तरफ तो मेरी शख्सियत का राज पूरी तरह मुनकशफ न होने पाए और दूसरी तरफ खुद को गुलाम इस मार्के का एक हिस्सा समझे। चुनांचे मैंने बहुत से मुसल्ला सिपाहियों को अंदर जाने दिया और सिर्फ उन्हीं को ठिकाने लगाया जो मेरे करीब थे। अंदर घुमसान का रन पड़ गया था। गुलामों के हाथों में जंजीरें थीं जिन्हें वो पूरी कुव्वत के साथ घुमा रहे थे, और जो सिपाही भी उनकी जद में आ जाता, आन की आन में उसका चेहरा उधड़ कर गोश्त और हड्डियों का ढांचा बन जाता। मैंने हैरत के साथ देखा कि इस मार्के में मर्दों के साथ औरतें भी बराबर की शरीक थीं। कोई औरत ऐसी न थी जो जंग में हिस्सा न ले रही हो। मैंने ये भी देखा प्रोफेसर के फाका कुशी, लागरी और महरूमी के बावजूद इन गुलामों के जिस्म में जैसे बिजलियां भर गई थी। वो कयामत बन बन कर सिपाहियों पर टूट रहे थे और उनकी बोटियां उधड़ रहे थे। बहुत से सिपाहियों की तलवारें जंजीरों की भारी जरबात से टुकड़े टुकड़े हो गईं और उन्होंने खौफजदा होकर भागना चाहा, लेकिन वो दरवाजे से बाहर न निकल सके। इनकी किस्मत में इस तहखाने में मरना ही लिखा था। फिर ऊपर से ताज़ा कुमक आ पहुंची। अगर ये सब के सब लोग अंदर पहुंच जाते तो यकीनन बहुत से गुलाम मारे जाते। मैंने इनमें से ज्यादातर को दरवाजे पर ही ढेर कर दिया।
और फिर मुझे एक कड़कदार आवाज सुनाई दी, ऐ जलील इंसान, अपना हाथ रोक ले, तेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका है। और कबल इसके कि मैं संभल सकूं, अरफाज की दोधारी तलवार पूरी कुव्वत से मेरे शाने से टकराई और तलवार के टुकड़े उड़कर दूर तक जा गिरे, जिनसे अरफाज के कई सिपाही जख्मी हो गए। मैंने पलटकर अरफाज के सर पर एक घोंसा रसीद किया और देखते ही देखते उसका भेजा नाक के रास्ते बह गया। अरफाज के मरने से लड़ाई का नक्शा बदल गया। मैं पहले ही कह चुका हूं प्रोफेसर कि जहाज पर अरफाज के सिपाहियों और अमले की जो तादाद थी, गुलामों की तादाद उससे कहीं ज्यादा थी। अरफाज के आदमियों में से अब बहुत थोड़े से लोग बचे थे, बाकी सब या तो मर गए थे या शदीद जख्मी हो गए थे। इन बचे कुछ लोगों ने पहले हथियार फेंक दिया और मेरे हुक्म पर गुलामों ने, जो अब गुलाम नहीं रहे थे, इन्हें गिरफ्तार करके रस्सियों से बांध दिया। तुम अपना नाम क्यों नहीं बताते दोस्त? एक बेहद खूबसूरत हसीना ने आंखें मुस्कुराकर मुझसे पूछा। तुम ही मेरा कोई नाम रख दो, मुझे तो अपना नाम मालूम नहीं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हें सारो कहूंगी। उसने कहा, जानते हो हमारे वतन की जुबान में इस लफ्ज का क्या मतलब है? इसका मतलब है निजात दहिंदा। तुमने हम सबको इस जलील जिंदगी से निजात दिलाई है, इसलिए हम तुम्हें सारूम कहेंगे। चुनाचे इन सब ने मुझे सारूम कहना शुरू कर दिया। इस हसीना ने अपना नाम वतरेसा बताया। गुलामों की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि नई जिंदगी से निजात मिल जाएगी और वो अपने आकाओं पर फतेह हासिल कर लेंगे। तहखाने में हर तरफ खून, गोश्त और इंसानी आज़ा और लाशें बिखरी पड़ी थी। बहुत से जख्मी करा रहे थे। मैंने सूरत-ए-हाल का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि इस मार्के में 10 गुलाम मारे गए, जिनमें से 6 औरतें थीं और 4 मर्द। अरफाज के आदमियों के मुकाबले में ये नुकसान न होने के बराबर था। मैंने गुलामों से दरियाफ्त किया कि आया इनमें से कोई जख्मियों का इलाज करना जानता है। फौरन 2 आदमियों ने अपनी खिदमात पेश कर दी जो इस फन से वाकिफ थे। जैसा कि गिरफ्तार शुदा बर्दाफरोशों ने बताया, जहाज पर काफ़ी दवाएं मौजूद थीं जो हंगामी सूरत-ए-हाल के लिए रखी गई थी। दवाएं हासिल कर ली गई और जख्मियों का इलाज शुरू हो गया। तब लोग तहखाने से निकल कर ऊपर आ गए। जख्मियों को भी ऊपर मुंतकिल कर दिया गया था और तहखाने का भारी भरकम दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया गया कि अंदर पड़ी हुई लाशों को इसी तरह छोड़ दिया गया। अब मैंने बाहर आकर जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। अरफाज के सारे आदमी खत्म हो चुके थे और कुछ जख्मी थे जिनका इलाज किया जा रहा था। जहाज में खाने पीने की अशिया मौजूद थी। गल्ले से गोदाम भरे हुए थे। इतना गल्ला था कि इन सारे लोगों के लिए कुछ अरसे के लिए काफ़ी हो सकता था। जहाज में एक बहुत बड़ा असलहा खाना भी मौजूद था जिसमें काफ़ी तादाद में मुख्तलिफ किस्म के हथियार मौजूद थे। इसके अलावा कपड़ों और दीगर अशियाए ज़रूरत का भी अच्छा खासा ज़ख़ीरा मौजूद था। मतलब यह प्रोफेसर के जहाज का जायजा लेने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि ये लोग ज़हन में जो सफ़र का मंसूबा बनाकर निकले थे और इसीलिए इनके जहाज में ज़रूरत की हर चीज़ काफ़ी मिकदार में मौजूद थी। हम अरफाज पर फतेह पा चुके थे। सारे गुलाम आज़ाद और फतेह मंद थे, लेकिन मुझे इन सब के चेहरे पर एक ही सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा था कि अब क्या करना है। मेरे ज़हन में इस सवाल का वाज़ेह और मतीन जवाब मौजूद था और मुझे यकीन था कि वो लोग मेरी तजवीज़ से ज़रूर इत्तिफाक करेंगे। मैंने इन सब को जहाज़ के वसी और अरीज़ अरशे पर जमा किया और इनसे पूछा कि अब आज़ाद इंसानों की हैसियत से वो क्या करना चाहते हैं। हम वही करेंगे जो तुम कहो कि सारूम, क्योंकि तुम हमारे नजात दहिंदा हो। मर्दों और औरतों की मिली जुली आवाज़ें बुलंद हुई। तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। मैंने सबसे मुखातिब होकर कहा, तुम लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखते हो। अब तुम में से हर एक का अपने वतन वापस जाना नामुमकिन है। हमारे पास ऐसे वसाइल मौजूद नहीं हैं कि तुम्हें तुम्हारे घरों तक पहुँचाया जा सके। किस्मत ने सबको यकजा कर दिया है। जहाज में खाने पीने का इतना सामान मौजूद है कि कुछ अरसे के लिए काफ़ी हो सकता है। ये गैर आबाद और वीरान इलाका है, लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ की ज़मीन अच्छी है और सब्ज़े की बहुतात है। अगर हम मेहनत से काम लें तो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। ये जगह आबादियों से बहुत ही दूर है। हम यहाँ एक नई बस्ती तामीर करेंगे, खेत और बागात उगाएंगे, घर बनाएंगे और अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन यहाँ सुकून व इत्मीनान के साथ गुजारेंगे। तुम्हें मर्द भी हैं और औरतें भी, सभी जवान हैं। तुम लोग आपस में शादियाँ करके अपना घर बसा सकते हो और औलादें भी पैदा कर सकते हो। ये तुम्हारा नया वतन होगा, यहाँ तुम्हें किसी की गुलामी का खौफ नहीं होगा। अगर बस्ती पर कोई आफत आएगी तो हम सब मिलजुल कर उसका मुकाबला करेंगे।